A very good morning, my dear student. My dear student, as you know, that at present issue of debenture topic is going on. This chapter is going on in accountancy. This is class 12th. So, dear student, today we'll start a new topic, and the new topic name is the collateral security, my dear student. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Suppose you are taking loan from bank. You are here and you are taking loan from bank. This is a bank and you are taking loan from bank. अगर आप बैंक से लोन लोगे तो डेफिनेटली एज अ सिक्योरिटी एज अ मोर्टगेज आपको कुछ देना पड़ेगा. सपोज आपने 50 लाख रुपीज़ का लोन लिया है और बैंक कहता है कि एज अ मोर्टगेज व्हाट यू हैव. आपने कहा आई हैव अ लैंड ऑफ रुपीज़ 50 लाख, तो मैं उसे मोर्टगेज कर दूंगा. उन्होंने ठीक है, दिस इज ओके, दिस इज 50 लाख, बट आपको 70 लाख रुपीज़ का कुछ रखना चाहिए. तो 20 लाख रुपीज़ के लिए आप क्या करेंगे? तो एज अ सिक्योरिटी, एज अ मोर्टगेज सिक्योरिटी, जब हम अपने डिवेंचर्स इशूड कर देते हैं, दे देते हैं, किसको? बैंक को दे रहे हैं एज अ सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड द कोलेटरल सिक्योरिटी, माय डियर स्टूडेंट. बिकॉज इफ वी आर इशूइंग द डिवेंचर्स, तो इसके बावजूद हम बैंक को इसका कोई इंटरेस्ट पेड नहीं करेंगे माय डियर स्टूडेंट. तो नाउ we'll study the what's the meaning. My dear student, when company issue debenture as an additional security, it's kind of first security we have given, this is a principal security, but with the additional securities, with principal securities obtained a loan is known as issue of debenture as a collateral security, my dear student. It's my dear student, clearly they are saying that अगर आप कोई एडिशनल सिक्योरिटी आप पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो डैट इज कॉल्ड द करेक्टेड सिक्योरिटीज. एंड जो हम एडिशनल सिक्योरिटी देंगे उसमें क्या दे रहे हैं? वी आर इशूइंग द डिवेंचर्स, माय डियर स्टूडेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द व्हाट इज द जनरल एंट्रीज, माय डियर स्टूडेंट. डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द लोन फ्रॉम बैंक. Suppose you are taking loan from bank. From class 11th you have already studied this type of journal entry. So first now we will maintain the journal entry. If we are taking loan from bank, so what comes in? Definitely bank balance comes in, and you know very well audit that what comes in debit होता है. So that's why bank account debit. And to bank loan, why bank loan is credited? Because you know very well about it that loan is a liability, bank loan is a liability, and liability is credited. So first entry is a very simple entry, that bank account debit into bank loan if we are taking loan from bank, my dear student. But now in the second entry, when we will issue the debenture as a collateral security, my dear student, then what general entry we have to pass? In that situation, my dear student, we are issuing the debenture. Debenture is also the liability, you know very well about it. बट इस वक्त जब हम डिवेंचर को एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो ना तो हमारे पास कोई एसेट आ रही है, ना तो मेरे पास कोई कैश आ रहा है, बैंक बैलेंस आ रहा है, और ना ही मेरे पास कोई एसेट आ रही है. इन दैट सिचुएशन वी हैव टू राइट द डिवेंचर सस्पेंस. इसका इट्स मीन दिस एक्सपेंडिचर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट. बिकॉज मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, बट वी आर इशूइंग अ डिवेंचर. डिवेंचर तो मार्केट में जा रहे हैं, बट एज अ सिक्योरिटी वी आर गिविंग. तो इन दैट सिचुएशन हमें डेबिट करना पड़ेगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड 2% डिवेंचर, जितने भी परसेंट डिवेंचर्स होंगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा. तो दिस आर वेरी सिंपल टू एंट्रीज. इफ यू आर टेकिंग लोन, तो दिस एंट्री यू विल पास, एंड व्हेन you will issue the debenture as a collateral security, then second entry you have to pass, my dear student. So this is not a very difficult task. So now, my dear student, यहाँ पर हमें पास दो ऑप्शन होंगे. when debenture issued as a collateral security, this is the first option, this is the second option. Now we will study the what is the first option. First option saying, my dear student, when an entity decides to record the debentures issued as a collateral security, जब एक एंटिटी ने, एक एंटरप्राइज ने, एक बिजनेस ने डिसाइड कर लिया कि वो रिकॉर्ड करेगी इसे, तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? सिंपल जनरल एंट्री, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, दिस डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ऑलरेडी जो अभी आपको सिखाई बेटा. Second option, in the second option they are saying when an entity decide not to record the debenture issued as a collateral security, जब वो कह रहे हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे डिवेंचर जो हम सिक्योरिटी में दे रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन नो नीड टू पास द एंट्री. बट कौन सी वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं बेटा, बड़े ध्यान से देखिए. देयर आर टू एंट्रीज, देयर आर टू एंट्रीज. यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, ये तो बनेगी.
but this entry you will not pass in that situation, debenture suspense account debit to debenture account, because क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आप इसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते. इन दैट सिचुएशन फर्स्ट एंट्री डेफिनेटली यू हैव टू पास, बट सेकंड एंट्री यू विल नॉट पास. तो ये बात हमें समझ लेनी है कि अगर वो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि वी हैव टू रिकॉर्ड, तो दोनों एंट्री बनेंगी, और रिकॉर्ड नहीं करना है तो दिस एंट्री यू विल नॉट पास, बट यू आर टेकिंग द बैंक लोन फ्रॉम बैंक, तो फर्स्ट एंट्री तो आपको पास करनी ही पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट. बट इसको हमें थोड़ा बैलेंस शीट में भी चेक करना है कि बैलेंस शीट में कैसे इसे एडजस्ट करते हैं. तो नाउ आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट. So this is a question, and question is saying that had limited took loan of rupees 8 lakh. इन्होंने कितने रुपए का लोन लिया? 8 लाख रुपए का. फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है. इशूड 10,000 9% डिवेंचर, और इसके बदले में हमने 10,000 9% डिवेंचर इशूड कर दिए और ₹100 ईच एज अ करेक्टर सिक्योरिटीज. हाउ विल बी इशूड एज अ डिवेंचर्स शोन इन द बैलेंस शीट माय डियर स्टूडेंट. वगैरह आप बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे? एंट्रीज आर वेरी सिंपल, एंट्री सिंपल है जो दो बताइए, बट दे आर सेइंग दैट एंट्री तो बनाते रहना, लेकिन आप इसे बैलेंस शीट में शो करो इन टू सिचुएशन. नाउ फर्स्ट इज अ व्हेन जनरल एंट्रीज इज नॉट पास्ड, सेकंड व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड माय डियर स्टूडेंट. तो फर्स्ट टॉपिक इज अ फर्स्ट मेथड इज अ व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड माय डियर स्टूडेंट. इसका मतलब पहली जनरल एंट्री तो बनानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द बैंक अकाउंट डेबिट and to bank loan. First entry will pass, but second entry as a character security when we are issuing, this entry will not pass my dear student. My dear student, you know very well that this is a balance sheet, this is equity and liability. In the equity and liability you will write the non-current liabilities, because in the non-current liabilities you have to write the long-term borrowing, and this is note number 1. In the note number 1 now we will explain the long-term borrowing. लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे पास क्या है? लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. डेफिनेटली 8 लाख रुपए का हमने लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और हम बिकॉज इसको लिख नहीं रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग एज अ नोट टू अकाउंट. यहाँ पर हमें नीचे लिखना पड़ेगा सिक्योरिटीज बाय इशूड 10,000 9% डिवेंचर्स और ₹100 इज एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी. तो यहाँ पर आपने नोट टू अकाउंट के अंदर बस इसे नोट कर दिया है बेटा, बट आपने इसे रिकॉर्ड नहीं करा है. But second word is saying when general entries will pass. तो जनरल एंट्री बनी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, तो डिवेंचर इसकी एंट्री बना दी. इन दैट सिचुएशन माय डियर स्टूडेंट, अब बैलेंस शीट्स में आपको आना इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. इन द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिस इज नोट नंबर 1. इन द नोट नंबर 1 यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे नोट टू अकाउंट में. इन द नोट टू अकाउंट सबसे पहले लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माय डियर स्टूडेंट, ये 8 लाख रुपए का लोन है. लेकिन सेकंड दिस लाइबिलिटी यू विल हैव टू शो, बिकॉज इस वक्त हमें डिवेंचर को शो करना है. अब शो कर रहे हैं 10,000 9% डिवेंचर और ₹100 ईच इशूड एज अ करेक्टर सिक्योरिटीज माय डियर स्टूडेंट. तो नाउ वी आर शोइंग ये 8 लाख रुपए का लोन शो कर दिया, 10 लाख रुपए की हमने डिवेंचर भी शो कर दिया, बिकॉज 10,000 डिवेंचर और ₹100 ईच मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख रुपीज आएगा माय डियर स्टूडेंट. लेकिन ये भी हमें समझना जरूरी है, देन लेस डिवेंचर सस्पेंस, बिकॉज डिवेंचर सस्पेंस इज लाइक एक्सपेंडिचर, तो इसको माइनस करके दिखाना है. तो 10 lakhs minus 10 lakhs इज अ 0. तो इफ यू हैव टू शो, तो यू हैव टू शो लाइक दिस माय डियर स्टूडेंट. और जब शो नहीं करना तो फिर तो आपको नोट टू अकाउंट में बस एक अंडरलाइन करके लिख देना उसे. तो दिस इज अ क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट. अकॉर्डिंग टू दिस there is some assignment question my dear student, you have to do some assignment question my dear student. Thank you so much. I hope that you understood this topic, and this is a very simple topic my dear student. Thank you so much my dear student.